What a day it has been, and it's been a privilege listening to this major culmination on an initiative that's began in ideation form months ago. For those of you who've been sitting with us and those of you watching this broadcast on NewsX, we've been running this weekly show for several weeks now to deal with hard issues. This is not just a TED talk. This is not just life stories. This is about people who've faced duress in their lives. You've had the opportunity to see on a podium floor acid attack victims who've told us their fight through many, many years of struggle and sacrifice. You've seen people who have brought glory to us. We began this conversation about 7-8 years ago, speaking about the basics of Beti Bachao, Beti Padhao. Today we are talking about Nari Shakti. Much has changed, and much in the future, of course, with all your blessings, needs to change. So it's been a privilege to be here, and it's a privilege to get one of the most energetic union ministers with us, who has done phenomenal work in taking the cause of the sporting women of India, many of whom are sitting in the audience with us. So Anurag Thakurji, at the We Women Want Conclave, if I could have the pleasure of your company on stage. We have a couple of special treats for our audience members, including the women who have made sure that India's flag flies high on international podiums. Sir, if I could request you, and I'm going to make this opportunity, we have Neetu Gangas, gold medalist at the Commonwealth Games for Boxing, is with us in the audience. Neetu ji, please come and join us on stage with the Union Sports and Youth Affairs Minister. Pinky Rani Jangra, bronze medalist at the Commonwealth Games for Boxing, is with us here. Kavita Bhartiya, they are both recipients of the Nari Shakti Awards here 2022. Ma'am, stay with us for a second. Ma'am, aap mere saath rahiye. Pinky Rani ji bhi, aap bhi aaiye, please. Could I request the trophy for Pinky Rani ji, please? Thank you so much. We also have with us Ritu Rani, who is the ex-captain of the Indian hockey team. Ritu has just received her award. Ritu ji, if you are with us, please come and join us on stage. Because these are the women that represent the tenacity that has taken the transition into Nari Shakti. आपकी देश सेवा के लिए और जो देश की नारियां देख रही हैं टेलीकास्ट, बहुत बहुत सेवा. And Anurag ji for facilitating them, thank you so much. We also have one small treat, so then I have a few questions for you. As you know, on the 5th of August, we took out the Great India Run from Lal Chowk in Srinagar. 829 kilometers conducted over the course of 10 days, including a whole host of 70 women runners, which has been fascinating. That is Ritu's daughter, a future gold medalist right there. And with your permission, sir, we would like to present you the mashal that has been carried from Srinagar, Lal Chowk by our runners over the course of these 829 kilometers. Could I request Kartik Sharma ji, who was there in Srinagar and Lal Chowk, to light the mashal to bring the culmination here to the Union Sports Minister. Abhi, aaiye, please. Get your photographs taken. Aaiye, please. Let them take a photograph. Can we have a huge round of applause? Ladies and gentlemen, what this represents is the strength and tenacity, the vision and the fortitude of the women that are leading India and will continue to lead India in the good hands of good policy making and good initiatives that are coming from all those that we've heard from today. Anurag ji, please. I would thank you, ladies, and thank you so much for taking out the time, be with us and to speak with us, and of course receive the award from the Union Sports Minister. Thank you so much. सबसे पहले तो सभी उन महिलाओं को, मैं तो कहूँगा देवियों को, उस नारी शक्ति को जिसको शक्ति अवार्ड्स मिले हैं, उन सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं. एक प्रयास है आपका कि उनके काम पर उनकी पीठ थपथपाई जाए, प्रोत्साहन हो. मैं आज सुबह ही माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके आया हूँ, तो शायद आज इस कार्यक्रम में आना था तो दूसरी ओर नारी शक्ति का योगदान अलग अलग क्षेत्रों में हुआ. खेलों से लेकर सामाजिक क्षेत्र में
जो काम हुआ, अभी माननीय सांसद कार्तिकेय शर्मा जी ने जिस तरह से मशाल दी, और मशाल कहाँ से, लाल चौक से 5 अगस्त की तारीख को। अब ये दो चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं, मैं आपके विषय पर आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा 5 अगस्त 2019 जब आज़ादी के बाद 70 साल तक देश को इंतज़ार करना पड़ा 370-35 से छुटकारा पाने के लिए, मोदी जी की सरकार आई, धारा 370-35 से सदा सदा के लिए छुटकारा जम्मू कश्मीर को मिल गया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश की उस दिशा में है। और मैं आपको 2011 में इसलिए ले जाना चाहता हूं कि 12 जनवरी 2011 को मैंने राष्ट्रीय एकता यात्रा, तिरंगा यात्रा कलकत्ता से कश्मीर तक की शुरू की। भारतीय जनता युवा मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था और तिरंगा झंडा लाल चौक पर हमने फहराना था। कारण केवल 3-4 थे। सेना पर पथराव हो रहा था, उसको रुकवाना था। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में उस समय बदलाव हो रहा था, उसको रुकवाना था। कश्मीर को ज़्यादा स्वायत्तता देने की बात करती थी कांग्रेस की सरकार, उसको रुकवाना था। और जम्मू कश्मीर में शांति हो, ये संदेश लेकर जाना था। इसमें कुछ भी राष्ट्र विरोधी नहीं था। लेकिन जब मैं कलकत्ता से कश्मीर की ओर चला, देश के लाखों युवा साथ में जुड़े, तो उस समय उमर अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने विरोध जताया कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने नहीं देंगे क्योंकि अलगाववादी और आतंकवादी इसके विरोध में है। आप कल्पना कीजिए अपने ही देश के किसी हिस्से में आपको तिरंगा झंडा ना फहराने दिया जाए, और कारण केवल अनुच्छेद 370-35 से था। आज वो हट गया है। तभी कार्तिकेय जी आप वहाँ पर जाके मशाल भी ले जा पाए। आज कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक हो, लाल चौक पर जाकर तिरंगा झंडा फहरा सकता है। प्रिया जी भी लहरा सकती हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आसान नहीं था जी। मेरे साथी कार्यकर्ताओं की हड्डियां तोड़ दी गई, नील के निशान पड़ गए, कई दिन तक जेल में रखा गया। मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, सांसद था, मैं यात्रा का चला रहा था, लेकिन अरुण जी, सुषमा जी राज्यसभा और लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता थे, उनको जेल में डाल दिया। तो ऋषभ जी बहुत बड़ा बदलाव आया है। और आपने जब नारी शक्ति की बात की, मैं तो अपने घर से देखता हूँ जो सम्मान हमारे परिवारों में नारी को मिलती है, एक माँ हो, बेटी हो, शुरुआत वहाँ से होती है। उसके पैदा होने से पहले और उसके आने पर जो खुशियाँ मनाई जाती है, सम्मान वहाँ पर है। लेकिन वो सोच बदलने से शुरू होता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सोच प्रधानमंत्री मोदी जी की थी। वो लाए भी। जिस राज्य से आप आते हैं कार्तिक जी, या आपके पड़ोसी राज्य पंजाब है, दोनों में लड़कियों की संख्या 830 और 840 थी 1000 लड़कों के मुकाबले। लेकिन समाज ने उसको अपनाया। सरकार ने तो किया, मोदी जी की सोच थी, सरकार ने प्रयास किए, लेकिन समाज ने अपनाया। मैं हरियाणा के लोगों का, पंजाब के लोगों का आभारी हूँ। आज 970 और 990 लड़कियां हैं 1000 के मुकाबले। बड़ा बदलाव समाज में देखा है। और दूसरा आगे आता है कि महिलाओं को चिंता क्या थी। आप में से गांव में कौन कौन रहता था, जरा हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 लोग पूरे हॉल में गांव वाले हैं। इसलिए आप दर्द गांव वालों का समझेंगे नहीं जब तक उनके बीच में जाएंगे नहीं। मैं गांव से आता हूँ, बहुत छोटा सा गांव है, समीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में। मैं बचपन में, मेरे पिता प्रोफेसर थे, जलंधर पढ़ाते थे कॉलेज में। मेरी भी वहीं पे, बाद में 3 साल का मैं गया, तब पढ़ा भी, पंजाब के लिए खेला भी। जब मैं अपने गांव जाता था तो घड़ा मैंने अपने सिर पे उठाया जी, और पानी उठाकर ही लाना पड़ता था घर तक, आधा किलोमीटर चल के। वो सबसे नज़दीक था। तो महिलाओं की कल्पना कीजिए जिनको दिन में बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने, पीने का पानी भी चाहिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, बाकी आवश्यकताओं के लिए चाहिए। उनके ऊपर क्या बीतती होगी। जिनको खेत पे भी काम करना है, पशुपालन भी करना है, समाज का काम भी देखना है, परिवार भी देखना है, खाने से लेकर नहाने तक की चिंता भी करनी है। उनके सिर से लकड़ी का बोझ हो, धुएं की मुक्ति हो, या फिर पानी का घड़ा उतारने का काम हो, ये किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में किया है, जो एक बहुत बड़ा योगदान
नारी शक्ति के प्रति है, मातृशक्ति के प्रति है। आपने उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर दे दिया, शौचालय आपने बनाकर दिया, तो एक तरह से मैं कहूँ सम्मान स्त्री को दिया है जी। 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, घनी आबादी के गांव में कम 4-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वो क्या बीतती होगी गर्भवती महिला पर, सूर्य उदय से पहले जाए, सूर्यास्त का इंतजार करे। ये कहना आसान लगता है शहरों में बैठकर। इसी होटल के जरा शौचालय एक दिन के लिए बंद करो, जब आप पूरी दिन की मीटिंग करते हो हालत देखना क्या होती है। जिन महिलाओं ने अपनी पूरी जिंदगी उसमें बिता दी, या लोगों ने उनके ऊपर क्या था, पक्के मकान बना कर दिए, बैंक खाते दिए, शौचालय बना कर दिए, रसोई गैस का सिलेंडर दिया, और साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर बाकी योजनाएं लेकर आए, जहां बेटी की पढ़ाई भी सुनिश्चित की, उज्जवल भविष्य के लिए भी उनके लिए योजनाएं हम लेकर आए हैं। गर्भवती महिला की डिलीवरी से पहले भी ध्यान और डिलीवरी के बाद भी सरकार उसका खर्चा रखे, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी मैकेनिज्म हो, उसके लिए हमारी सरकार ने पैसा खर्च किया है। इसीलिए जो शिशु मृत्यु दर है वो भी कम आई, और एक गर्भवती महिलाओं की भी जो मृत्यु होती है तो कम हुई है। इसके बड़े कारण हैं पीछे, और एक पोषण अभियान जो बच्चों के लिए चला है, इसका सबसे बड़ा लाभ बेटियों को, छोटी छोटी बेटियों को ज़्यादा मिलता है। क्योंकि एक सोच बन गई थी कि बेटों को पहले बेटी को बाद में, ये धारणा कई सालों से चली आई। तो अनुराग जी, इसलिए मैंने शुरुआत ये करी थी कि 7 साल पहले जो नारे की ज़रूरत थी, जो कैंपेन की ज़रूरत थी, वो ऐसी कैंपेन थी कि पहले तो बेटी को बचाओ। 7 साल बाद आंकड़े बदल गए हैं और हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। तो ये अगला पड़ाव आपके हिसाब से क्या है? आप किसी स्कूल में जाइए, मैं आपको वैसे खुला निमंत्रण देता हूँ। मैं अपने संसदीय क्षेत्र के किसी स्कूल, किसी कॉलेज में जाता हूँ, टॉप 10 बच्चों में 7 लड़कियाँ होती हैं जी। आउट ऑफ 10 7 आर गर्ल। ये छोटी बात नहीं है जी। आपने केवल उनको स्कूल भेजने का काम किया, बाकी उन्होंने खुद किया। आपने उनको शिक्षित किया, वो सेना में भर्ती हुई, आपने उनको बाकियों के बराबर दर्जा दिया, आज वो अफसर हैं। द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी दूर सुदूर गांव में आदिवासी परिवार से आती हैं, महिला हैं। उस गांव की अकेली बेटी थी जो शहर में जाकर पढ़ी, पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट तक की यात्रा पूरी की। आपने कुछ नहीं किया। ये उस महिला के नाते उनकी अपनी ताकत थी, अपनी इच्छा शक्ति थी, अपना परिश्रम था, अपनी मेहनत थी। वो केवल महिला या आदिवासी होने के कारण नहीं, उनके जो गुण हैं उसके कारण, अपनी काबिलियत के आधार पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज भारत की पहली महिला और आदिवासी भी जो है इस बैकग्राउंड के बावजूद राष्ट्रपति बनी है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। जब भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है मेरे भाइयों। अनुराग जी, लेकिन जब अब हम आगे मार्गदर्शिका देखें, जब भी रिफॉर्म की बात आती है, हाल ही में इतने मुद्दे आए हैं, 3 तलाक का मुद्दा आया, हिजाब का मुद्दा आया, ये सांप्रदायिक दौर ले आते हैं। ऐसा क्यों है? अगर हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, विमेन के रिफॉर्म के लिए आगे जाने के, सांप्रदायिक मुद्दे फिर भी क्यों आ रहे हैं? देखिए, समाज में कभी भी बदलाव लाएंगे जो बहुत लंबे समय से चल रहा, थोड़ा उसका विरोध होता है, लेकिन कानून सबको एक नज़र से देखता है, सबके लिए एक बराबर होता है। अब ये कहाँ पर उचित है, मैं आप सबसे, चलिए मैं आप जितनी यहाँ पे नारी शक्ति बैठी, मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए आप भी उस धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं और आपके पति, आपने चाय में थोड़ी चीनी ज़्यादा डाल दी तो आपको कहें तलाक तलाक तलाक, और आपको घर से बाहर का रास्ता निकाल दें। आपके खाना बनाने में थोड़ी देरी हो जाए, कुछ और कारण हो, और आपको फ़ोन पे बोले तलाक तलाक तलाक, और आपको घर से बाहर आपके बच्चों के साथ निकाल दें, तो क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? हाँ या ना जी? नहीं करेंगे। तो ये अन्याय उनको क्यों सहना पड़ा? कितने वर्षों तक सहना पड़ा जी? राजीव गांधी जी के पास एक इतना बड़ा अवसर था सुधारने का, एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई, उसके बावजूद भी इच्छा शक्ति की कमी थी। हमने वोट बैंक की राजनीति नहीं की, महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए ट्रिपल तलाक से
निजात दिलाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और ऐसे बड़े और कड़े निर्णय भी हमारी सरकार ने किए हैं, देश और समाज के हित में किए, आगे भी करेंगे। क्या तो फिर अनुराग जी ऐसे लोग अभी भी रह गए हैं, चाहे वो राजनीति में हो चाहे समाज में हो, जो ये बदलाव देखना ही नहीं चाहते? कोई देखना चाहे ना चाहे, बदलाव हो रहा है। किसी के देखने ना देखने से क्या है जी। हमें 2014 में जनता ने बैठाया, हमने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आज सीना ठोक कर कहते हैं 8 साल हो गए, कोई 8 पैसे का आरोप भी नरेंद्र मोदी की सरकार पर भ्रष्टाचार का नहीं लगा सकता। 75 साल का इतिहास उठाकर देखिए, पहली बार ऐसा हुआ। और हम कुछ करने के लिए आए। आपदा के समय हमने दूसरे देशों की ओर नहीं देखा। मास्क भी यहीं बनाया, पीपी किट भी यहीं बनाई, दवाई भी यहां बनाई, वैक्सीन भी यहां बनाई, 170 से ज़्यादा देशों को दी भी, और हिंदुस्तान में 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया है। तो ऐसे बदला हुआ भारत है, नया भारत है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर हम आगे चले हैं, इसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। लेकिन अनुराग जी अभी भी जो सांप्रदायिक मुद्दा उठाते हैं, हिजाब की केस देखिए, उसके सबसे बड़े प्रोपोनेंट, सबसे बड़े जो लोग उनको दिलचस्पी से मिलाते हैं, वो फिर भी अभी भी सांसद बन जाते हैं, फिर भी वोट जीतते हैं। ये क्या सबक सिखा रहा है आप? अब वोट देने वाले से आप पूछ सकते हो। वोट देने वाले भी तो देश का नागरिक है। What you see in the parliament is the reflection of the society. You can't run away from it. समाज का परछाई ही आपको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में देखने को मिलती है। आखिरकार इसी समाज में से किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्तियों को चुनकर आता है जी। अनुराग जी, लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाले के बाद भी कितने साल तक मुख्यमंत्री रह गए। वीरभद्र सिंह जी सेब घोटाले के बाद और बाकी घोटालों के बाद भी 5 साल मुख्यमंत्री रह गए, और न्याय प्रक्रिया ही आज तक पूरी नहीं हुई जी। बट क्या जो लोग बोलते हैं कि क्या कपड़े पहनने हैं, कहाँ कब जाना है, किधर बाहर जाना है, जो नेता बन जाते हैं, क्या उनका समय समाप्त हो गया है? मुझे लगता है ज्ञान बांटना बंद कर देना चाहिए जो भी देता है। स्वतंत्र भारत में आपका अधिकार है कि आप क्या पहनना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, कैसे रहना पसंद करते हैं। और मैं कहूँ कि किसी के ऊपर थोपने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपने तरीके से प्रयास करता है कि डिग्निटी के साथ रहे, और समाज में उसको भी समाज का हिस्सा बन के रहना होता है। हर कोई प्रयास करता है। अनुराग जी, हाल ही में और ये मॉरल पुलिसिंग किसी का ना मेरा काम है ना आपका काम है। तो इसमें अब क्या रह गया है? हाल ही में 2-3 दिन पहले बड़ा गंभीर खबर आई दिल्ली से। 8 साल की बच्ची थी, बलात्कार होके मार दिया गया। अभी छाया शर्मा आ रही थी, बैठी थी हमारे साथ, डीसीपी थी। जब निर्भया का केस हुआ था, उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी से उसकी इन्वेस्टिगेशन करी थी, उस पर न्याय लाया था। बट उसके दौरान भी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कुछ दिन पहले बोले थे कि देखिए आपने कानून इतने सख्त बना दिए हैं कि बलात्कार के बाद अब मर्डर होके हो जा रहा है। तो ये क्या टिप्पणी ऐसी करना सही है? ये एनालिसिस है, प्रैक्टिकलिटी है, ये क्या है? देखिए, मुझे उस दिन मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी सुन के बहुत अफसोस हुआ। अशोक गहलोत जी वरिष्ठ नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे, आज भी हैं। उस माँ की नज़र से देखो जिसकी बच्ची के साथ ये घटा होगा। उस बच्ची के बारे में सोचिए जिसको 8 वर्ष की आयु में पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसकी हत्या कर दी गई। और इस तरह की टिप्पणी करना, शायद वो लोग कभी उस तरह से सोचते ही नहीं हैं। निर्भया कांड हुआ 16 दिसंबर 2012 को, और उस समय भी मैं देखता था जितना हल्के तरीके से उस समय की यूपीए की सरकार ने लिया। सड़कों पर उतरना पड़ा, आंदोलन करने पड़े, छात्र सड़कों पर आ गए। पार्लियामेंट में उस समय भी एमपी था, उस समय भी आया कि कड़ा कानून बनाए। लेकिन आज मेरा प्रश्न ये उठता है,
कड़ा कानून तो बनाएं, लेकिन न्याय जल्दी दिलाएं जी। कब निर्भया के कातिल पकड़े गए और कब उनको फांसी की सजा हुई, और क्या उसके बाद ये रुक पाया? बात है कि आपकी मॉरल वैल्यूज कहाँ हैं। स्कूलों में बहुत पहले ये सब एक आपकी पढ़ाई का हिस्सा होता था। आहिस्ता आहिस्ता इतनी गिरावट आती चलेगी, मॉरल वैल्यूज़ को भी बाहर निकाल दिया गया और इतिहास की जानकारी भी आधी अधूरी देने का काम किया। आज भी आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैंने एक आज़ादी क्वेस्ट, हमने एक गेम लॉन्च की है, हीरोज़ ऑफ भारत और मैच 3 आज़ादी क्वेस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपका योगदान होगा आज़ाद भारत के प्रति। आपको जानकारी मिलेगी कि कौन फ्रीडम फाइटर थे, कौन नहीं थे। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। गेम से ज्ञान मिलेगा, भारत के गौरवशाली इतिहास का मिलेगा। जैसे हमने स्वराज सीरियल दूरदर्शन पे बनाया कि अनसंग हीरोज़ के बारे में आज की पीढ़ी को बताएं और आने वाली पीढ़ियों को कि भारत का गौरवशाली इतिहास क्या था। नहीं तो हमें तो यही पढ़ाया गया, मुगल और अंग्रेज़ों का शासन था, हम लोग गुलाम थे। इस गुलामी की मानसिकता से बाहर आना होगा। उससे पहले बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास हमारा था, समृद्ध संपन्न देश था, लेकिन कहीं ना कहीं ऋषभ जी बहुत तेज़ी के साथ समाज में और सरकारों ने उसको नीचे की ओर लाते चले गए। तो अनुराग जी, जब हम न्याय की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि ये फिर से बिल्किस बानो का केस गुजरात में खुल गया है। इतने सालों बाद ये मुद्दे वापस क्यों आ रहे हैं? न्याय की, अगर न्याय की बात है तो या न्यायालय पे रहना चाहिए सिर्फ, या समाज पे भी इसमें जुड़ना चाहिए कि हम सोचें ये सही है गलत है? इस तरह से न्याय का क्या संदेश जा रहा है? मैं इतना ही कहूँगा, अगर प्रक्रिया में कोई कमी है तो उसको उठाना चाहिए। अगर सारी प्रक्रिया पूरी की गई, सज़ा पूरी की गई, उसके बाद कमेटी बैठी, वो अगर नियम अनुसार हुआ है और उसको लेकर किसी को आपत्ति है तो कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटा सकते हैं। लेकिन इसको जाति धर्म के साथ जोड़कर हर चीज़ को देखना ये देश के लिए उचित नहीं है। एक के बाद दूसरा केस ऐसा आता है, कोई हल्की टिप्पणी करता है, उसके बाद बवाल होता है। इनसे जितना बचा जाए उतना अच्छा है। हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। आज सबको संकल्प लेना चाहिए, हम अमृत काल में जो 5 प्रण की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली, उन 5 प्रण को भी अपनाएंगे और केवल अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, कर्तव्यों का पालन करेंगे। अमृत काल में भारत को, अपने देश को फिर एक बार महान बनाने का काम हम सब भारतीय मिलजुल कर करेंगे। मेरे पास अनुराग जी, एक आखिरी सवाल। हमारे साथ स्पोर्ट्स पदक जीतने वाली बड़ी महिलाएं हैं, पूरे दिन से हैं हमारे साथ। खेलो इंडिया जो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, अब इंफ्रास्ट्रक्चरल वाइज जा रहा है, विनिंग मेडल्स वाइज जा रहा है, इसमें जो हमारी महिला स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनकी देखभाल के लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या नीतियाँ ला रहे हैं? 2-3 में इस पे थोड़ा 2 मिनट लगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलों को बहुत प्राथमिकता दी, टॉप टू बॉटम अप्रोच है। और जब प्रधानमंत्री स्वयं कहें कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू करनी है, खिलाड़ी का रहने का, खाने का और उनकी ट्रेनिंग का, बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग, सबका खर्चा भारत सरकार सहती है। नेशनल इंटरनेशनल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल जो है उसका खर्चा भारत सरकार सहती है। इंटरनेशनल ट्रेनिंग का खर्चा हम लोग सहते हैं। और इसके बाद भी 6 लाख रुपया जेब खर्च हर साल हम एलीट एथलीट्स को देते हैं, जो 70 साल में कभी देश में हुआ नहीं, हमने करना शुरू किया। 3000 खिलाड़ियों को देश में अलग अलग अकेडमीज़ में रखते हैं, जहां पर 5 लाख रुपया एक खिलाड़ी के ऊपर खर्च होता है और 1,20,000 उसको जेब खर्च अलग से देते हैं। 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने खोले हैं, स्टेट ट्रेनिंग सेंटर अलग से खोले हैं और अब खेलो इंडिया सेंटर 1000 देश में खोल रहे हैं। 590 की अनुमति दे दी है। पूर्व खिलाड़ी कोई भी होगा जो राज्य उसके लिए कहेगा, हम उसको 5 लाख रुपया साल का सेंटर चलाने के लिए देंगे, ताकि उसको स्वरोजगार भी हो और बच्चों को प्रशिक्षण भी वो दे सके। 1000 सेंटर देश भर में हम खोलने की शुरुआत की है। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं, हालांकि खेल राज्य का विषय है, उसके बावजूद हमने ये किया है। दूसरा, खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, आप में हीन भावना ना हो, यह हम प्रयास करते हैं।
अच्छी सुविधाएं दे के, अच्छे कपड़े दे के, अच्छी ट्रेनिंग दे के। और विदेश में जब हमारे खिलाड़ी खेलने जाते तो हर बड़े टूर्नामेंट से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे स्वयं बात भी करते हैं, मनोबल भी बढ़ाते हैं। टूर्नामेंट के बीच में आवश्यकता पड़े तो वहाँ भी इंटरवीन करके बात करते हैं और वापस आने पर अपने घर पर यानी कि प्रधानमंत्री निवास पर बुलाकर उनको चाय भी पिलाते हैं। ये शायद पहले ही किसी प्रधानमंत्री ने किया हो, ये बड़ा बदलाव शायद दुनिया में कोई प्रधानमंत्री ने किया है। और सीधे खिलाड़ियों से बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में करते हैं। It is motivating, and all the work that you're doing, and for coming on this podium, taking the tough questions and sending this message across. It has been an epic culmination to what has, I think, been one of the most discerning conclaves that I've ever been part of. Anurag ji, really appreciate you taking out the time for us. Can we have a big round of applause? Thank you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.